अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर इमरान महमूद खान है and I am working as senior demonstrator in Department of Pharmacology. Today we will discuss about nomenclature and classification of drugs. The term drug nomenclature implies that there are several names that can be used for identification of a drug. Usually drugs have three different names. One is chemical name, second one is non-proprietary name, and the third one is proprietary name. First of all, we will discuss the chemical name. A chemical name is given when a new chemical entity is developed. It is the name given to the drug in accordance with rules of chemical nomenclature established by International Union of Pure and Applied Chemistry. It is useful for chemists or technical personnel as it provides the precise arrangement of atoms or atomic groups in the molecule. It is not used to identify the drug in a clinical or marketing situation. The second name is non-proprietary name. It is a short name given to the drug that is not subject to proprietary rights. The non-proprietary name should always be concise and meaningful. This is used in discussion and textbooks. There are two classes of non-proprietary names. One is approved name and the other one is official name. Approved name, this is the name given to the drug by the bodies like United States Adopted Name Council USAN and British Approved Name soon after its introduction. This name sometimes referred to as generic name. However, this term is used to designate a chemical or pharmacological class of drug such as sulfonamide and penicillin. Now we come to the official names. It is the name approved by the National Pharmacopoeia Commission and included in the official book, that is Pharmacopoeia. The official name should be identical with the approved name. And the last one is proprietary name. It is the name given to the drug by the pharmaceutical company which sells the drug. Thus, a single drug is sold under many proprietary names by different firms. जिस तरह आपको पता है कि जो पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल की एक टेबलेट बहुत सारी कंपनीज बना रही हैं. कोई कालपोल बना रहा है, कोई पेनाडोल बना रहा है, कोई और ग्रुप से बना रहा है. सो एक केमिकल के डिफरेंट प्रॉपर्टी नेम्स हैं जो डिफरेंट केमिकल कंपनीज हैं अपने अपने नाम से ड्रग को मार्केट में सेल करती हैं, मार्केट करती हैं. They are written with capital initial letter and are often further distinguished by superscript or in the circle. Clinicians usually describe drug by their proprietary names. डॉक्टर जो ड्रग की प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं, पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं, तो यूजली उसमें प्रोप्राइटरी नेम्स यानी कंपनीज के नेम लिखे होते हैं. अब हम सारे नेम्स कैसे होते हैं उसकी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ. जैसा कि पैरासीटामोल आपको पता है, इसका जो केमिकल नेम है पैरासीटामोल का, दैट इज N4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एस्टामाइड. देन इसका नॉन प्रोप्राइटरी जो नेम है उसमें जो अप्रूव्ड नेम है, जो ब्रिटिश अप्रूव्ड नेम है, दैट इज़ पैरासीटामोल. जो यूसैन है, जो यूनाइटेड स्टेट अडॉप्टेड नेम है, दैट इज़ एसेटामिनोफेन. अब जो इसका ऑफिशियल नेम है जो फार्माकोपिया के अंदर रजिस्टर्ड है वो भी एसेटामिनोफेन है. और जो इसका प्रोप्राइटरी नेम्स हैं वो पेनाडोल हो सकता है, कालपोल हो सकता है, एडोल हो सकता है. सो दिस वाज अबाउट नोमेनक्लेचर ऑफ ड्रग्स. नाउ वी कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स. अब हम देखेंगे कि हम ड्रग को क्लासीफाई कैसे करते हैं. इट इज़ वेरी एसेंशियल बिकॉज इट अलाउज सेवरल थाउजेंड ऑफ ड्रग्स टू बी रिड्यूस्ड टू अ मैनेजेबल नंबर ऑफ ग्रुप्स. There is no uniform or homogeneous system of classifying drugs that suits all these purposes. कोई ऐसा सिस्टम हमारे पास अभी नहीं बना कि जिसमें हम सारी ड्रग को एक ही क्लासिफिकेशन के अंदर परोस सकें. सो डिफरेंट हमारे पास क्लासिफिकेशन के टूल्स हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे.
Drugs are classified according to the convenience of the person discussing them. For example, chemist, pharmacologist, pharmacist, and clinician. Usually, we classify the drugs based on their chemical nature, on their source, उनका टारगेट ऑर्गन या साइट ऑफ एक्शन क्या है ड्रग की, ड्रग का मोड ऑफ एक्शन क्या है, देन जो हम ड्रग यूज़ कर रहे हैं उसके थेरेप्यूटिक और क्लिनिकल यूजेस क्या हैं, फिजियोलॉजिकल सिस्टम इफेक्ट उसके क्या हैं और फिजिकल इफेक्ट्स क्या हैं. ये सब पैरामीटर है जिनकी बिना पे हम ड्रग्स को क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लासिफिकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन केमिकल नेचर. Chemical nature of drug is discussed by a chemist and based on chemical nature we divide drug into, या तो ड्रग्स हमारी ऑर्गेनिक ड्रग्स हो सकती हैं या इनऑर्गेनिक हो सकती हैं. इनऑर्गेनिक ड्रग्स हमारी मेटल्स एंड देयर साल्ट्स हो सकती हैं लाइक फेरस सल्फेट एंड जिंक सल्फेट एज वेल एज मैग्नीशियम सल्फेट. और जो नॉन मेटल्स हैं दीज इंक्लूड सल्फर. ऑर्गेनिक ड्रग जो होती हैं उसमें मैंने आपको जो सोर्सेज ऑफ ड्रग, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ उसमें सोर्सेज ऑफ ड्रग्स मैंने काफ़ी आपको बताए थे. दे कैन बी एल्कलाइड्स. एल्कलाइड की जो एग्जांपल्स है एट्रोपिन हो सकती है, मॉर्फिन हो सकती है, स्ट्रिक्निन हो सकती है. देन आर द ग्लाइकोसाइड्स. ग्लाइकोसाइड में हमारे पास कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं लाइक डाइजॉक्सिन है एंड डिजिटॉक्सिन. देन सर्टन प्रोटीन्स लाइक इंसुलिन एंड ऑक्सीटोसिन. देन ऑर्गेनिक सोर्सेज में एस्टर्स हो सकते हैं, अमाइड्स हो सकते हैं, अल्कोहल्स एज वेल एज ग्लिसराइड्स. देन सेकंड पैरामीटर फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग इज बेस्ड ऑन देयर सोर्स. फॉर एग्जांपल, पहला जो ड्रग का सोर्स है दैट इज नेचुरल सोर्स. नेचुरल सोर्स में हमारे पास प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, सर्टन मिनरल्स भी हो सकते हैं. जो प्लांट सोर्सेज की ड्रग्स है उसमें मॉर्फिन आती है, एट्रोपिन आती है और डाइजॉक्सिन होती है. जो एनिमल सोर्सेज है उसमें इंसुलिन हो सकती है और बीटा HCG हो सकती है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो ड्रग हम तैयार करते हैं जिसे एंटीबायोटिक्स कहते हैं, उसके एग्जांपल में हमारे पास जो प्रोटोटाइप ड्रग है दैट इज पेनिसिलिन. इस तरह मिनरल सोर्सेज में हमारे पास सोडियम क्लोराइड है. देन सिंथेटिक सोर्सेज में हमारे पास सल्फोनामाइड्स है, प्रोकेन है और भी बहुत सारी ड्रग्स हैं. जो सेमी सिंथेटिक सोर्सेज है इसमें अमोक्सिसिलिन है, एम्पिसिलिन है एंड डॉक्सीसाइक्लिन है. देन सर्टन बायोसिंथेटिक सोर्सेज है जो कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से हम ड्रग को तैयार करते हैं. उसमें रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन एरिथ्रोपोइटिन है और रिकॉम्बिनेंट बोवाइन सोमैटोट्रोपिन है. देन द थर्ड पैरामीटर फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग इज बेस्ड ऑन देयर टारगेट ऑर्गन. कि ड्रग किस सिस्टम पे एक्ट करती हैं. फॉर एग्जांपल, जो ड्रग CNS पे एक्ट करेंगे उसकी एग्जांपल में हमारे पास डाइज़ेपाम, फिनोबार्बिटोन हो सकती है. देन ड्रग्स एक्टिंग ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जो ड्रग एक्ट करती हैं वो बहुत सारी हो सकती हैं. बीटा एगोनिस्ट होती हैं, ठीक है. बीटा एगोनिस्ट में जैसे आपको पता है वेंटोलिन हो सकती है और बहुत सारी ड्रग्स हैं. इस तरह जो ड्रग्स CVS पे एक्ट करती हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, डाइजॉक्सिन हो सकती है, डिजिटॉक्सिन हो सकती है. देन ड्रग्स एक्टिंग ऑन द GIT लाइक मेप्राजोल है, क्योलिन है. देन ड्रग्स एक्टिंग ऑन द यूरिनरी सिस्टम, उसमें हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट है, लासिक्स है. एंड ड्रग्स एक्टिंग ऑन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें हमारे पास जो इंक्लूडेड ड्रग हैं ऑक्सीटोसिन है एज वेल एज एस्ट्रोजन. देन द फोर्थ पैरामीटर फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग इज बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ एक्शन. कि ये ड्रग एक्ट कैसे करती हैं. फॉर एग्जांपल, देयर आर सर्टन ड्रग्स दैट आर इनहिबिटर्स ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस. ऐसी ड्रग्स हैं हमारे पास जो बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती हैं, इनहिबिट करती हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती. इसमें हमारे पास सारा पेंसिलिन ग्रुप है, सेफ्लोस्पोरिन्स है, ये सारे इसमें आते हैं. देयर आर सर्टन ड्रग्स दैट आर इनहिबिटर्स ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस. इस तरह जो नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास है उसमें ऐसी ड्रग आती हैं जो बैक्टीरिया की प्रोटीन की सिंथेसिस को ब्लॉक करती है. इसमें टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरोफेनिकोल है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं और बहुत सारी ड्रग्स हैं. देन देयर आर सर्टन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स लाइक वर्apamil एंड फिडिपिन है, जिनको हम ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट में और हार्ट की सर्टन कंडीशन होती हैं जिनमें हम यूज़ करवाते हैं. देन नेक्स्ट ग्रुप फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग इज बेस्ड ऑन देयर थेरेप्यूटिक यूज़. कि हम ड्रग को
क्लिनिकल यूज़ क्या करवा रहे हैं उसकी बेस पे हम ड्रग को क्लासीफाई कर सकते हैं, लाइक एंटी माइक्रोबियल्स और एंटी बैक्टीरियल्स, पेंसिलिन हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, क्विनोलोन्स हैं, मैक्रोलाइड्स हैं। दैन एंटी हाइपरटेंसिव है जो कि ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवाइयाँ हैं, लाइक क्लोनिडीन है, हाइड्रेलाजीन है एंड इनैलाप्रिल। एंड सर्टन एंटी डायरियल ड्रग्स हैं जो कि हम डायरिया की ट्रीटमेंट में देते हैं, लाइक लोपेरामाइड एंड क्योलिन। दैन सर्टन एंटीमेटिक ड्रग है जो कि हम वॉमिटिंग की ट्रीटमेंट में देते हैं, लाइक डोमपेरिडोन है, मैक्लिजीन एंड मेटोक्लोप्रामाइड। दैन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजियोलॉजिकल सिस्टम, लाइक सर्टन ड्रग्स हैं जो कि सिंपैथोमाइमेटिक्स हैं जो कि हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम के एक्शन को इन्हेंस कर देती हैं, लाइक एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन। दैन पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स ऐसी ड्रग हैं जो कि हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं, लाइक कार्बाकोल है, फाइलोकार्पिन है एंड न्यूस्टिग्मिन है। दैन सर्टन न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हैं, लाइक सक्सामिथोनियम एंड गैलामीन है जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक्ट करती हैं। देन द लास्ट ग्रुप फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग इज बेस्ड ऑन देयर फिजिकल इफेक्ट्स, कि जो ड्रग हम क्लासीफाई कर रहे हैं, जो ड्रग हम यूज़ कर रहे हैं वो फिजिकल इफेक्ट क्या बॉडी में प्रोड्यूस कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट ग्रुप हमारे पास दैट इज इमोलियंट्स, इसमें लेनोनिन है एंड वेसलिन है। इमोलियन क्या होती हैं कि जो हमारी जिल्द में खुश्की आ जाती है, ड्राइनेस आ जाती है, उसकी ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं। एंड कॉस्टिक्स में सिल्वर नाइट्रेट आती हैं एंड डिमल्सेंट्स हैं, जिंक ऑक्साइड है एंड टैनिक एसिड है। डिमल्सेंट क्या होते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम इनको यूज़ करवाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब कफ वगैरह का मसला होता है, सिक्रेशन ज़्यादा होते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट में हम इनको देते हैं। सो दिस लेक्चर वाज अबाउट नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। मैंने इस लेक्चर में थोड़ा सा आपको बेसिक कंसेप्ट दिया है कि ड्रग का नोमेनक्लेचर क्या है और ड्रग को हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।